Assalamu alaikum. My name is Hadia Faruqi Saidu Zafar. I am working in JT Arts, Science and Commerce College for Women Malegaon. Today in this video we are discuss about seed technology. These are the key points. Definition of seed, difference between seed and grain, seed technology, classes of seed, nucleus seed, breeder seed, foundation seed, certified seed and truthful seed. First we see definition of seed. Seed is an mature fertilized ovule which consists of seed coat which surrounded the embryo and other associated tissue. Simply seed क्या है? It is an mature fertilized ovule and which consists of seed coat, and the seed coat it surrounded the whole embryo and the other associated tissues, and this whole structure is known as seed. Then we see the differences between seed and grain. First one is the seed and second is the grain. First difference between seed and grain is seed is the result of well planned seed program, and in the grain it is a part of commercial produce sold for sowing planting purpose. Second difference between seed and grain is seed is the result of scientific knowledge, and in the grain no such knowledge is required. Third difference between seed and grain is seed is scientifically processed, and in grain the grain used as seed may be manually cleaned. Then fourth difference between seed and grain is the seed is tested for planting quality, and in the grain routine seed testing is not done. And next difference between seed and grain is during production of seed efforts are made, and in the grain during production of grain no such efforts are made. Then next difference between seed and grain is seed quality is usually supervised by an agency not related with production, and in the grain there is no quality control. And the last difference between seed and grain is the seed has to essential meet the quality standard, and in the grain no such standard apply. The next is the seed technology. Seed technology can be defined as the method through which the genetic and physical characteristic of seed could be improved. It involves such activities as variety development, evaluation and release, seed production, processing, storage and certification. Seed technology क्या है? हम इसी के साथ डिफाइन कर सकते हैं. It is a method through which the genetic and physical characteristic of seed can be improved by the different activities. Like variety development, then evaluation and release, seed production, processing, storage and certification. Next is the classes of seed. There are four types of seeds, or there are four classes of seed. First one is the nucleus seed, second one is the breeder seed, third one is the foundation seed, and fourth is the certified seed. Then we see one by one. First, nucleus seed. Nucleus seed is the essential amount of pure seed of an improved variety or notified variety or parental line of a hybrid. न्यूक्लियस सीड क्या होता है? न्यूक्लियस सीड जो होता है ये इसेंशियल अमाउंट होता है कोई भी प्योर सीड का ऑफ एन इम्प्रूव्ड वैरायटी. कोई इम्प्रूव्ड वैरायटी जो होती है उसका जो इनिशियल अमाउंट होता है सीड होता है, इसे हम न्यूक्लियस सीड कहते हैं. न्यूक्लियस सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओरिजिनल ब्रीडर. न्यूक्लियस सीड कौन प्रोड्यूस करता है? ओरिजिनल ब्रीडर इसको प्रोड्यूस करता है. और द इंस्टीट्यूट और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फ्रॉम बेसिक न्यूक्लियस सीड स्टॉक. न्यूक्लियस सीड इज द 100% जेनेटिकली प्योर सीड विथ फिजिकल प्योरिटी. Next, a pedigree certificate is issued by the producing breeder. चूँकि न्यूक्लियस सीड को कौन प्रोड्यूस करता है? ओरिजिनल ब्रीडर प्रोड्यूस करता है, इसीलिए जो पेडिग्री सर्टिफिकेट होता है ये ब्रीडर जो है ये न्यूक्लियस सीड के लिए प्रोवाइड करता है.
Next type or class of seed is the breeder seed. Breeder seed is the seed directly controlled by the originating breeder engaged in the breeding program. ब्रीडर सीड क्या होता है? एक्चुअली ब्रीडर सीड जो होता है ये सीड्स होता है जो कि डायरेक्टली ये कौन कंट्रोल करता है? ओरिजिनेटिंग ब्रीडर इसको कंट्रोल करता है, जो कि पूरा ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है ये कंडक्ट करता है. द ब्रीडर पर्सनली सुपरवाइज द प्रोडक्शन. ये जो ब्रीडर सीड का पूरा प्रोडक्शन होता है इसको ब्रीडर पर्सनली सुपरवाइज करता है. द ब्रीडर or the authorized scientist produce it on the research station on direction of Government of India as required by State Seed Corporation produce its quantity. जो ब्रीडर होता है, जो ब्रीडर सीड को प्रोड्यूस करता है, और जो ऑथोराइज्ड साइंटिस्ट होते हैं जो ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन करते हैं, कहाँ पर करते हैं? ऑन द रिसर्च स्टेशन. और किसकी डायरेक्शन पर करते हैं? ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया as required by State Seed Corporation produce its quantity. The next, breeder seed is the 100% physical and genetically pure seed. A golden yellow color certificate is issued for this category of seed by the producing breeder. जिस तरह न्यूक्लियस सीड जो होता है इसकी पेडिग्री दी जाती है जो ओरिजिनल ब्रीडर इसको प्रोड्यूस करता है, इसी तरह ब्रीडर सीड जो होता है इसको गोल्डन येलो कलर का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, इशू किया जाता है ब्रीडर सीड की जो कैटेगरी होती है. और इसे कौन देता है? प्रोड्यूसिंग ब्रीडर. जो ब्रीडर सीड को प्रोड्यूस करता है ओरिजिनेटिंग ब्रीडर, ये गोल्डन येलो कलर का सर्टिफिकेट जो है ये इशू करता है फॉर द ब्रीडर सीड. नेक्स्ट इज द फाउंडेशन सीड. फाउंडेशन सीड इज़ द प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड. फाउंडेशन सीड्स क्या होते हैं? जो हम प्रीवियस पढ़े हैं ब्रीडर सीड, ये इनकी प्रोजनी होते हैं. द प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसी इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अंडर सुपरविजन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी in such a way that its quality is maintained according to prescribed field सीड स्टैंडर्ड. जो प्रोजनी होती है ब्रीडर सीड की हम इसको क्या कहते हैं? फाउंडेशन सीड कहते हैं, है ना. तो जो ब्रीडर सीड की प्रोजनी है, जो फाउंडेशन सीड है, ये कौन प्रोड्यूस करता है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड एंड सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज. अलग अलग एजेंसीज होती हैं जो सीड को प्रोड्यूस करती हैं इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अंडर द सुपरविजन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी in such a way that its quality is maintained according to prescribed field seed standards. Foundation seed is propagated on the specialized farm of registered seed grower. फाउंडेशन सीड को कहाँ पर प्रोपगेट किया जाता है? ऑन द स्पेशलाइज्ड फार्म ऑफ रजिस्टर्ड सीड ग्रोवर. द प्रोडक्शन शैल बी सुपरवाइज्ड बाय द certification agency. Foundation seed is the 99.5% genetically pure. प्रीवियस जो हम देखे हैं न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड, ये दोनों जो होते हैं ये 100% जेनेटिकली और फिजिकली प्योर सीड्स होते हैं, लेकिन फाउंडेशन सीड्स क्या होते हैं? दे आर 99.5% जेनेटिकली प्योर सीड्स. A white color certificate is issued for foundation seed by the seed certification agency. क्योंकि फाउंडेशन सीड को पूरा प्रोड्यूस किसके सुपरविजन में किया जाता है? सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के सुपरविजन में प्रोड्यूस किया जाता है. इसीलिए जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है ये प्रोडक्शन होने के बाद जो फाउंडेशन सीड होता है उसको वाइट कलर का सर्टिफिकेट जो है ये इशू करती है, जो क्या डिटरमाइन करता है कि इट इज़ द फाउंडेशन सीड. एंड द लास्ट इज द सर्टिफाइड सीड. सर्टिफाइड सीड इज द प्रोजनी ऑफ फाउंडेशन सीड. ब्रीडर सीड की प्रोजनी जो होती है ये फाउंडेशन सीड होती है. फाउंडेशन सीड की जो प्रोजनी होती है ये सर्टिफाइड सीड होती है. द प्रोजनी ऑफ फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस्ड बाय रजिस्टर्ड सीड ग्रोवर under supervision of seed certification agency to maintain the seed quality as per minimum seed certification standard.
इसमें क्या होता है कि ये जो सर्टिफाइड सीड्स होते हैं ये कौन प्रोड्यूस करता है, रजिस्टर्ड सीड ग्रोवर्स जो होते हैं ये सर्टिफाइड सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। किनके अंडर में, अंडर द सुपरविजन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, जो कि पूरा सुपरवाइज करने के बाद, प्रोडक्शन को सुपरवाइज करने के बाद सर्टिफिकेट इशू करती है। और ये क्यों सुपरविजन करती है, टू मेंटेन द सीड क्वालिटी एज पर मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। Certified seed is certified by State Seed Certification Agency. Certified seed should have the minimum genetic purity of 99%. जो certified seeds होते हैं इनकी जो genetic purity होती है ये 99% होती है। A blue color certificate is issued by Seed Certification Agency for this category of seed. जो सर्टिफाइड सीड्स होते हैं जो कि प्रोडनी ऑफ फाउंडेशन सीड्स हैं, इनको सुपरविजन करने के बाद जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है ये ब्लू कलर का सर्टिफिकेट इशू करती है जो कि डिटरमाइन करता है कि इट इज़ द सर्टिफाइड सीड। एंड एक और इसकी क्लास है सीड की विच इज़ नोन एज ट्रूथफुल सीड। Truthful seed is the category of seed produced by cultivator, private seed companies and is sold under truthful label. Truthful seeds क्या होते हैं, ये सीड जो कुछ कल्टीवेटर्स होते हैं, कुछ प्राइवेट सीड कंपनीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, कुछ सीड्स को क्या करती हैं, सोल्ड करती हैं, है ना, अंडर द ट्रूथफुल लेबल। तो इस कैटेगरी के जो सीड्स होते हैं जो कि प्राइवेट कल्टीवेटर्स होते हैं, प्राइवेट सीड कंपनीज होती है, अगर ये किसी सीड को प्रोड्यूस करने के बाद कुछ ट्रूथफुल लेबल के साथ इसको मार्केट में सोल्ड करती हैं तो इस टाइप के सीड को ट्रूथफुल सीड कहते हैं। Truthful seeds does not come under the purview of the Department of Seed Certification, but field standard and seed standard should be maintained as per Seed Act and certified seed stage. जो ट्रूथफुल सीड्स होते हैं ये किसी डिपार्टमेंट के, किसी के सुपरविजन में नहीं होते हैं, सीड सर्टिफिकेशन के सुपरविजन में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें क्या करना होता है, अपना जो फील्ड स्टैंडर्ड और जो सीड का स्टैंडर्ड है ये मिनिमम मेंटेन करना पड़ता है एज पर द सीड एक्ट एंड सर्टिफाइड सीड स्टेज। अंडर द सीड एक्ट द सीड प्रोड्यूसर एंड सीड सेलर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीड। अब यहाँ पर क्या आता है, अंडर द सीड एक्ट क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, प्राइवेट सीड कंपनीज जो होती हैं, कुछ कल्टीवेटर्स जो होते हैं ये सीड को प्रोड्यूस करते हैं। तो सीड एक्ट में क्या होता है कि ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सीड क्वालिटी और सीड। Truthful labeling is compulsory for notified kind of variety and it is tested for physical purity and germination. अब जैसे कि ये किसी सर्टिफिकेशन एजेंसी के अंडर में इनका सुपरविजन नहीं होता है, ये प्राइवेट ही कंपनीज होती हैं जो कि कुछ सीड्स को क्या करती हैं, सोल्ड करती हैं मार्केट में। तो इनके लिए ये कंपलसरी होता है कि कुछ ट्रूथफुल लेबलिंग्स हो इन सीड्स के ऊपर, है ना, नोटिफाइड वैरायटीज़ के लिए। और ये जो वैरायटीज़ होती हैं ये क्या होती हैं, इट इज़ टेस्टेड फॉर फिजिकल प्योरिटी एंड जर्मिनेशन।